हे व्हाट्सअप, दिस इज दीपेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मशीन लर्निंग की हेल्प से आपके बैकग्राउंड वाले इमेज को कैसे ब्लर कर सकते हो, या फिर आप आपके बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो, या फिर आप आपके बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड of your image or how you can do segmentation with the help of UNet in machine learning. So recently I have posted 2 articles on the medium.com, and if you want to read them you can go to link in the description and check out my articles on that. So basically this article published on the medium.com and publication of Analytics Vidya also. And in this particular tutorial, if you are not familiar with the machine learning things, and if you are my regular viewers who watch my videos about the tech unboxing and other things, then still you can watch this video. So basically अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि इस आर्टिकल में मैंने क्या लिखा है एंड कैसे हमने बैकग्राउंड इमेज को ब्लर किया है. So without wasting time, let's get started. And if you haven't subscribers and also the bell icon to get notification about all of its videos. Now let's get started. So यहाँ पे 2 आर्टिकल है मेरे. The first one is the human segmentation with UNet using TensorFlow Keras. The second one is the blur or change background of images using machine learning. So ये 2 आर्टिकल मैंने पब्लिश किए थे, and if you want to know about this segmentation वाला part, you can go to this article and read about all this thing. And if you just want to know how you can blur the background of your images with the help of machine learning, then you can just read this article. So basically मैंने क्या किया, there is a data set available named OC Human. That data set give you some images and their labels. Like ये जो इमेज है एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास नॉर्मल इमेज है एंड उसके ऊपर कुछ रेड पार्ट है, फिर ग्रीन सेगमेंटेशन बना हुआ ह्यूमन का. तो इस टाइप का कुछ डेटा सेट है. तो इस डेटा सेट में बेसिकली नॉर्मल इमेजेस है एंड एक जेसन फाइल है जिसके थ्रू आप इस सेगमेंटेशन वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सो मुझे लगा कि डेटा सेट कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं है, तो मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड माई ओन कस्टम डेटा सेट. कस्टम डेटा सेट मैंने कैसे क्रिएट किया, सेम इमेजेस मैंने उस डेटा सेट से ली एंड उस डेटा सेट में जो मास्क था I replaced that mask with only 2 colors. Like human को मैंने white pixel से replace कर दिए and backgrounds को मैंने black से. And if you consider this particular image, उसी data set से इस particular image को आप consider करो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे picture में 2 person है. इसमें बस एक person का segmentation मेरे data set में. The second person, this girl, इसका मेरे पास नहीं है segmentation. So what I have done, I just created this data set. Now I'm going to feed this data set to our model which I created, which is known as UNet. And UNet basically used for the segmentation only. And if you don't know what is UNet and if you don't know what is segmentation, then you can go to this article and you can read about all the segmentation and UNet and all the theoretical part. Apart from that, there is coding thing also available in this article. So let's continue. So I have created this kind of custom data set which we'll gonna feed to the model. And okay, now हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है. तो बेसिकली यूनिट का जो क्लास मैंने बनाया था वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, बट हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. हम यहाँ पे सीधे देखेंगे कि यूनिट में मॉडल का साइज कितना गया. यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, ट्रेनेबल पैरामीटर के लिए यहाँ पे 19 lakhs कुछ पैरामीटर हैं यहाँ पे. तो यूनिट में टोटल 19 lakhs ट्रेनेबल पैरामीटर जिस पर मैंने ट्रेन किया एंड कुछ 3-4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कुछ 82 इपॉक्स पे मैंने शायद ट्रेन किया. एंड 82 इपॉक्स पे ट्रेन करने के बाद जो हो मेरा जो लॉस चालू हुआ था, एक्चुअली लॉस मेरा चालू हुआ था 50 के आसपास से, वो 20 के आसपास आके ड्रॉप हुआ. एंड एक्यूरेसी मेरी कहीं 20-22 या 10 के आसपास से चालू हुई थी. एंड एक्यूरेसी एट द एंड ऑफ 82 इपॉक एक्यूरेसी मुझे 45 तक देखने को मिली, विच इज़ रियली नाइस. एंड अगर मैं इसको कंटिन्यू ट्रेन करता करीब 200-300-400 इपॉक तक, तो शायद हो सकता था कि मॉडल और ज़्यादा सीखता या फिर और कुछ और फाइन ट्यूनिंग कर सकता था मैं. बट फिलहाल के लिए मैंने इतना ही किया क्योंकि मेरे उसमें कॉलेज बार बार क्रेश हो रहा था एंड उसका एक टाइम आउट भी हो गया था. तो मैंने हाल फिलहाल में इतनी ही ट्रेनिंग की एंड बस इतनी सी ट्रेनिंग के बाद जो रिजल्ट मुझे देखने को मिले काफ़ी बढ़िया थे. तो यहाँ पे मैंने जब ओरिजिनल इमेज मैंने मॉडल को फीड की 80 इपॉक पे, तो मॉडल ने ये जो बीच में इमेज प्रिडिक्ट की है ये बिल्कुल सिमिलर आपको देखने को मिलेगी जो ओरिजिनल इमेज थी. यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल मास्क में मेरे पास यहाँ पे 2 ह्यूमंस है एंड मॉडल ने भी काफ़ी हद तक उसके सिमिलर प्रिडिक्ट किया. एंड वन मोर थिंग गाइस, जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो मेन पर्सन मेरा कैमरे में फोकस रेड वाला है
एंड ब्लू वाला पर्सन कैमरा में यहाँ पे फ्रंट में, तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड बैकग्राउंड जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट के वो ब्लर होना चाहिए। तो ओरिजिनल में देखा जाए तो ये वाला पर्सन थोड़ा ब्लर है, तो मॉडल ने भी इसको थोड़ा ब्लर टाइप रखा, आई मीन ज़्यादा सेगमेंटेशन के प्रिडिक्ट नहीं किए। मॉडल ने इस रेड वाले पिलर के ही सेगमेंटेशन आई मीन पिक्सल्स को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे 81 जो इमेज है इसको भी आप देख सकते हो, इसमें भी प्रॉपर सेगमेंटेशन प्रिडिक्ट होकर मुझे मिल रहा है। एंड जहाँ तक बात करो पिक्सल्स एंड एजेस की, काफ़ी क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ यूनिट, टेंसरफ्लो, केरास। एंड अगर आपको नहीं पता कि सेगमेंटेशन क्या है तो सेगमेंटेशन के ऊपर मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, सेगमेंटेशन को आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके। यूनिट क्या है, क्यों यूज़ किया हमने, कैसा क्या आर्किटेक्चर होता है तो यूनिट के बारे में पढ़ सकते हो। टेंसरफ्लो हमने क्यों यूज़ किया उसके बारे में पढ़ना तो वो पढ़ सकते हो। डेटा सेट हमने ओसी ह्यूमन का ही क्यों लिया है आप उसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू नो हमने कस्टम डेटा सेट क्यों क्रिएट किया है एंड हमने किस किस टाइप का डेटा सेट क्रिएट किया, तो आप उन सबको पढ़ सकते हो। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो डेटा सेट क्रिएट किया उसमें वाइट बैकग्राउंड ब्लैक ह्यूमन इस टाइप का डेटा सेट ट्रेन किया। मैंने ब्लैक बैकग्राउंड वाइट ह्यूमन एंड सेम बैकग्राउंड विद ब्लैक ह्यूमन आई मीन ब्लैक मास्क, इस तरह तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने अलग अलग डेटा सेट ट्रेन किया, अलग अलग डेटा सेट क्रिएट किए एंड अलग अलग डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन भी किया। एंड इन सभी पे ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को कुछ ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट मास्क के साथ मुझे सबसे बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो इस रिजल्ट्स को लेके मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्या हमने अचीव किया। तो अब हम बात करते हैं मैंने ब्लर इमेजेस कैसे बनाए, या फिर आप चाहो तो बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये कैसे किया हमने मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज को मैंने मॉडल में फीड किया, मॉडल ने प्रिडिक्टेड इमेज बनाया विथ वाइट मास्क एंड ब्लैक बैकग्राउंड। सेम ओरिजिनल इमेज को लेके मैंने इस पर कुछ CV2 से ब्लर अप्लाई किया एंड पूरे इमेज को ब्लर कर दिया। तो अब मेरे पास दो इमेज है, एक ब्लर इमेज एक ओरिजिनल इमेज। अब प्रिडिक्टेड मास्क में मैंने जितने भी व्हाइट पिक्सल थे व्हाइट पिक्सल को मैंने रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल इमेज के पिक्सल्स थे। तो ओरिजिनल इमेज के पिक्सल जो थे जो ब्लर नहीं थे वो वाले पिक्सल्स आ गए व्हाइट पिक्सल की जगह, और जितने भी ब्लैक पिक्सल्स थे उनको मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लर इमेज के पिक्सल्स से। तो इमेज बैकग्राउंड वाली ब्लर भी हो गई। तो इस तरह की अप्रोच मैंने यूज की है। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये थी कि ह्यूमन का सेगमेंटेशन प्रिडिक्ट करना था। तो सेगमेंटेशन मॉडल काफी अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा था 82 इपॉक्स के बाद। बट इसको चाहो तो और भी ट्रेन कर सकते हो आप, या फिर आप कुछ और लॉजिक्स वगैरह लगा के कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मॉडल को खुद का इमेज फीड किया जो कि नॉन ब्लर इमेज है, पीछे ब्लर नहीं है मैंने। एंड यहाँ पे मॉडल ने काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया इस सेगमेंटेशन को मेरे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेम टेक्निक अप्लाई की जो मैंने यहाँ पे आपको शो की थी। एंड यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले। बैकग्राउंड काफी अच्छा ब्लर हुआ, एज डिटेक्शन भी काफी परफेक्ट है एंड साथ ही साथ बाकी कलर एक्यूरेसी वगैरह भी सारी चीजें मेंटेन रही। ऑब्वियसली वो तो मेंटेन रहना ही है। तो इस टाइप का कुछ रिजल्ट देखने को मिला। अगर आपको खुद का बैकग्राउंड बनाना है तो आप ब्लर इमेज की खुद का बैकग्राउंड ले लो एंड खुद के बैकग्राउंड से पिक्सल्स को रिप्लेस कर दो, तो वो चीज़ भी काम कर देगी। तो ये था गाइस कैसे मैंने ब्लर किए इमेजेस। एंड अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे डेटा सेट से मैंने कैसे खुद के कस्टम डेटा सेट बनाए, किस तरह के फंक्शंस वगैरह मैंने लिखे हैं, क्या कोड लिखा है, तो उन सबको आप जाके देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे। उन सबको आप जाके देख सकते हो medium.com पे। यहाँ पे मैंने अपना पूरा गिटहब रेपो भी दे दिया है, तो उसको आज जाके आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें समझ सकते हो। एंड कुछ भी डाउट्स वगैरह अगर आपको हो तो मेरे को कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मॉडल बिल्डिंग से लेके सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ ट्रेनिंग क्या क्या कर सकते हो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको सजेस्ट की कि आप चाहो तो आप क्या क्या ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे यूनिट के साथ ट्रांसफर लर्निंग ट्राई कर सकते हो। वो सब चीज़ें क्या है अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके इस आर्टिकल पे जाके पढ़ सकते हो। एंड ग्रे स्केल इमेजेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ मेरे सजेशंस वगैरह दिए हैं, आप गेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। तो आप जाके बस इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। कोड वगैरह सारी चीज़ें ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो जाके पढ़ो, कुछ नया करके दिखाओ गाइस एंड कुछ इंप्रूवमेंट बताओ, मुझे कुछ सजेस्ट करो एंड इस चीज़ को आगे ले जाओ गाइस। सो गाइस बस इतना ही बताना था, आप लोगों से ही सारी चीज़ शेयर करनी थी। So that's it for this video. I hope you like it. Don't forget to subscribe and also hit the bell icon to get notification of all future videos. This is the best sign off. Meet you soon in the next video.